Hello everyone, welcome back to CA I'm Sandeep Agawar, and in today's discussion, we'll be broadly covering the provisions of PF Act. In our last discussion, we had gone through and seen the provisions of P-Tax and the Bonus Act. So we're continuing the same series on our labor law. Now friends, if I tell you one thing, I think most of us would agree. चाहे एक इंसान का सैलरी 20,000 है या चाहे सैलरी 40,000 है, महीने के 20-22 तारीख आते आते सब लोग अपना पॉकेट ज़रूर देखने लग जाएंगे कि कहाँ से पैसा निकालूं. नाउ लेट्स इमेजिन अ पर्सन अर्निंग 5-6,000 रुपीज़. उनके लिए तो सेविंग्स का स्कोप बहुत कम है. So basically, to help these people save for the future, we have this act and we'll be discussing today, the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act 1952. Friends, before we start, let's just look at some of the provisions from income tax point of view as well. PF schemes come under triple E category, that is exempt, exempt and exempt. Interest up to 9.5% is exempt. Employer's contribution up to 12% of salary is exempt. That is, it will not be treated as a perquisite in the hands of the employee. The third one, as and when the employee withdraws his accumulated balance, such accumulated balances withdrawn is also exempt. Okay, now with this we'll move forward. Under this act, friends, we have three different schemes and each scheme का different objective है. Employees Provident Fund Scheme 1952. The basic objective of this scheme is to help the employees at the time of unemployment या फिर at the time of retirement. And there are some other occasions also when we can withdraw the funds from here. We'll discuss it later. Employees Pension Scheme 1995 का basic objective to help the employees post retirement period. मतलब आपका retirement के बाद it will help you get certain regular income in the name of pension each month. Employees Deposit Linked Insurance Scheme का basic objective help the employee and his family at the difficult times. Let's look at the applicability of the act. To whom these acts are applicable. Number one, factory engaged in any industry specified in Schedule 1 and in which 20 or more persons are employed. मतलब factory plus Schedule 1 plus 20 or more persons are employed. मतलब तीन conditions fulfill होना चाहिए. अब factory का definition अगर मैं बोलूं तो बॉस अगर आपका ट्रेडिंग कंसर्न नहीं है तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि आपका फैक्ट्री का डेफिनेशंस फुलफिल हो जाए. ठीक है. स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1. प्रैक्टिकली ईच एंड एवरी क्लासेस ऑफ इंडस्ट्रीज आर स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1. ठीक है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो व्हाट यू नीड टू सी इज बेसिकली 20 और मोर पर्सन्स. द अदर पॉइंट, एनी अदर एस्टैब्लिशमेंट employing 20 or more persons or class of such establishments which the central government may by notification in this official gazette specified. मतलब कोई और क्लासेस और एस्टैब्लिशमेंट अदर देन फैक्ट्री जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई कर दे एंड इन विच 20 से ज्यादा एम्प्लॉइज हो. अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रैक्टिकली ईच टाइप ऑफ एस्टैब्लिशमेंट्स मतलब नोटिफाई की हुई है. तो इन दिस पॉइंट आल्सो व्हाट वी नीड टू सी इज 20 और मोर पर्सन्स. और जब मैं ये बोल रहा हूँ कि प्रैक्टिकली नोटिफाइड है, प्रैक्टिकली सब फैक्ट्रीज स्पेसिफाइड है शेड्यूल 1 में, तो आप भी चेक कर सकते हैं. ये मैंने इस पीपीटी के नीचे लिंक दिया हुआ है. Once you visit the link, then you will also see कि practically each and every type is specified here. The third case, it says कि when you do not have 20 or more persons, मतलब अगर आपका 20 or more persons नहीं है तब भी आपका ये एक्ट अप्लाई हो जाएगा अगर employer and the majority of the employees they want कि the provisions of this act to be applicable on them. ठीक है. Now let's see the non-applicability as well. Cooperative societies registered under any law employing less than 50 persons and working without the aid of power. मतलब registered cooperative societies plus less than 50 employees. मतलब उस plus working without the aid of power. Basically अगर आपका कोई हैंडलूम cooperative societies हो जिसमें 50 से नीचे हो and if it is working without the aid of power, then this act would not apply. ठीक है. The other one is establishments which are under the control of the government and the government itself is providing the schemes of provident fund, pension fund, etc. to those establishments. So in that case, this act would not apply. Logical है कि वो लोग अपना act से मिल ही रहे, मतलब अपना government से अलग तरीका से मिल ही रहे. The third one is establishments set up under any central, provincial or state act and whose employees are entitled to the benefits of contributory provident fund or old age pension. मतलब सर कोई स्टैब्लिशमेंट जो एक स्पेशल एक्ट की तरह स्पेशल एक्ट से अगर कोई स्टैब्लिशमेंट एक स्पेशल एक्ट से गवर्न होता हो एंड वही एक्ट
आपका पेंशन प्रोविडेंट फंड एक्सेट्रा अगर करता हो तो उस स्टैब्लिशमेंट को भी ये एक्ट अप्लाई नहीं होगा, फॉर एग्जांपल LIC, SBI एक्सेट्रा। ठीक है, और द नोट में हमने ये डिस्कस किया है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो किसी भी क्लासेस ऑफ इंडस्ट्रीज को ये एक्ट से एग्जेम्पशन दे सकती है। क्लासेस ऑफ इंडस्ट्रीज का मतलब है कोई पर्टिकुलर होना चाहिए, एक पर्टिकुलर एस्टैब्लिशमेंट को नहीं दे पाएगी बट अ पर्टिकुलर क्लास, लेट्स से नेटवर्थ ऑफ दिस मच या फिर जिसका टर्नओवर ऑफ दिस मच, तो एक क्लासेस ऑफ इंडस्ट्रीज को ये वो दे सकती है एग्जेम्पशन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो। सो दिस वाज आल्सो अ थियोरेटिकल पॉइंट। Before moving, I just wanted to discuss on this scheme also that had come recently in this current period. Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana scheme. What is the benefit? Employer, what we'll see later on कि their contribution हम लोग को 12% देना पड़ता है। So first एक माइंड में अभी रख लेते हैं कि एक 12% कंट्रीब्यूशन लगता है। ठीक है, तो एम्प्लॉय का 12% कंट्रीब्यूशन प्लस एम्प्लॉयर का 12% कंट्रीब्यूशन जो होगा सैलरी का, द सेंट्रल गवर्नमेंट इज टेलिंग कि फॉर द मंथ ऑफ मार्च, अप्रैल एंड मे दैट इट विल पे ऑन देयर बिहाफ। वेरी गुड। अब इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, ये बस उन्हीं एम्प्लॉयर लोग के लिए है जो कि फर्स्ट कंडीशन इज द एस्टैब्लिशमेंट शुड ऑलरेडी बी कवर्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। ये तो एकदम लॉजिकल है, इट शुड ऑलरेडी बी कवर्ड एंड रजिस्टर्ड। यस, the other point is total employees is less than or equal to 100. The other point is उन्हीं employers को जिनका employee strength 100 या 100 से नीचे हो and 90% of those employees is earning less than 15,000. समझ गए? अगर एक establishment में मेरा अगर 80 employees है, ठीक है, 100 से नीचे, पर 80 का 90% दैट इज 72 या फिर 72 से ज्यादा एम्प्लॉइज का सैलरी मेरा 15,000 से नीचे होना चाहिए। सो इन दोज एस्टैब्लिशमेंट्स ओनली द एक्ट विल अप्लाई। ठीक है, अब एस्टैब्लिशमेंट्स तो हम लोग ने देख लिया, अब हम लोग ये देखेंगे कि ये एस्टैब्लिशमेंट में कौन सा एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, तो एम्प्लॉय की तरफ विल मूव। फर्स्ट पॉइंट, मंथली वेज और सैलरी इज लेस देन 15,000। वेरी गुड। The other one is UAN, that is universal account number. In PF we get this number. It should be linked with Aadhaar. ठीक है. The third point is employer should not be availing benefit under PMRPY scheme. मतलब प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना है ये. Employer should not be availing under other earlier benefit scheme जैसे कि ये है. ये scheme के तहत the government is contributing 12% of the employer's contribution. So the employer should not be availing this benefit. Then he can get the employee and the establishment can get under this scheme. जैसे हम लोग ने डिस्कस किया था कि सेविंग्स जो पर्सन लेस अर्न करता है वो लोग के लिए सेविंग्स का स्कोप थोड़ा कम है। अब ये एक्ट का बेसिक प्रोविजंस क्या है, एम्प्लॉय का हैंड में सैलरी देने से पहले ही कुछ परसेंटेज आपका एक गुल्लक में डिपॉजिट हो जाएगा। मतलब अगर आपका कोई एम्प्लॉय का सैलरी है 10,000, अब एम्प्लॉयर क्या करेगा, एम्प्लॉयर उस एम्प्लॉय को 10,000 देने से पहले कुछ परसेंटेज ले से 12% आपका 1200 एक पीएफ गुल्लक में डाल देगा और एम्प्लॉय को देगा 8800 ओनली। नाउ व्हेन द एम्प्लॉय विल गेट 8800 ओनली, देन ऑटोमेटिकली कि क्या बोलते हैं उसका सेविंग्स हो रहा है। ठीक है, 12%। सो बेसिकली दिस वाज द स्कीम की इन हैंड सैलरी देने से पहले ही कुछ परसेंटेज आपका पहले से सेव हो जाए। ठीक है, तो हम लोग कंट्रीब्यूशन रेट्स देख रहे हैं। कंट्रीब्यूशन रेट्स एम्प्लॉय का 12% स्लैश 10%, एक बार 10% नहीं देखते, 12%। मतलब एम्प्लॉय का जो 12% एंटायर कंट्रीब्यूशन है वो आपका एक ही स्कीम में जाएगा, पीएफ स्कीम में। अब एम्प्लॉयर का जो 12% है वो सेग्रीगेट होके दो स्कीम्स में चला जाएगा। एक 8.33% जो है वो जाएगा ईपीएस पोस्ट रिटायरमेंट वाला, एंड 12 minus 8.33% that is 3.67% will go to your provident fund scheme. ठीक है, तो 12% हम 12 एम्प्लॉय का 12% प्लस 3.67% ऑफ एम्प्लॉयर, सो टोटल पीएफ में जा रहा है 15.67%, ईपीएस में जा रहा है 8.33%, ईडीएलआई का एम्प्लॉयर विल बेयर द एक्सपेंस एट 0.5% एंड लाइकवाइज ही हैज टू बेयर एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस ऑफ 0.5%। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस में मिनिमम 500 लगेगा पर मंथ, और अगर आपका नील रिटर्न टाइप हो तो 75 रुपीज मिनिमम चार्जेस है। नाउ 10% रेट, लेट्स लुक एट 10% रेट कौन सा एस्टैब्लिशमेंट्स के लिए है। 10% रेट इज एप्लीकेबल फॉर एनी एस्टैब्लिशमेंट इन विच लेस देन 20 एम्प्लॉइज आर एम्प्लॉयड। ठीक है, जिसमें लेस देन 20 एम्प्लॉइज है, एंड बाय लेट्स से दिस इज द केस मे बी कि एम्प्लॉयर एंड द मेजॉरिटी ऑफ एम्प्लॉइज हैव अग्रीड। The other one is any SIC industrial company and which has been declared as such by
declared as such by Board for Industrial and Financial Reconstruction. मतलब आप कोई भी सिक इंडस्ट्रियल कंपनी एंड उसको सिक इंडस्ट्रियल कंपनी का टिक मार्क होना चाहिए बाय बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन. ठीक है. द थर्ड वन इज any establishment which has at the end of any financial year accumulated loss equal to or exceeding its net worth. मतलब थोड़ा आपका कंपनी का हालत थोड़ा खराब है, आपका जो लॉसेस है वो इतना एक्यूमुलेट हो गया है दैट इज इट इज ग्रेटर देन योर नेट वर्थ. ठीक है. सो इन दैट केस आल्सो आप 10% कंट्रीब्यूशन रेट होगा. एंड द फोर्थ वन इज एनी एस्टैब्लिशमेंट इन फॉलोइंग इंडस्ट्रीज: जूट, बीड़ी, ब्रिक, कोयल, गर्गम फैक्ट्रीज. ठीक है फ्रेंड्स. अब जब मेरा 10% कंट्रीब्यूशन रेट है तो एम्प्लॉय का तो पूरा 10% ईपीएफ में ही जाएगा और एम्प्लॉय का जो 10% है वो 8.33 जाएगा ईपीएस में. सो एंड 10 माइनस 8.33 दैट इज 1.67% विल गो टू योर ईपीएफ. तो व्हाट इज इट कि 8.33% इज फिक्स्ड इन ईपीएस, चाहे 10 हो या 12 हो. Let's move forward. Before looking at the scenarios, let's just see EPF का some provisions. The contributions are required to be paid on basic wage, DA, cash value of food concession, retaining allowance. जो हम लोग ने बोला कि ये 12%, 10%, ये क्या चीज पे कैलकुलेट होगा? ये कैलकुलेट होगा आपका बेसिक वेज पे प्लस DA पे प्लस रिटेनिंग अलाउंसेस पे प्लस कैश वैल्यू ऑफ फूड कंसेशन. कैश वैल्यू ऑफ फूड कंसेशन हम लोग ने बोनस एक्ट में देखा था कि अगर कोई एम्प्लॉइज लंच फैसिलिटी या फिर कुछ फूड फैसिलिटीज नहीं ले रहा है तो in substitution of that they are getting some money. ठीक है. So that is cash value of food concession. ठीक है. The first one what we got to know is ये 10-12% किस पे कैलकुलेट होगा. The other one is the contributions are mandatory for wages less than or equal to rupees 15,000. मतलब अगर आपका एस्टैब्लिशमेंट ये एक्ट में कवर्ड हो गया वो जो भी एम्प्लॉइज जिनका सैलरी लेट्स से सैलरी या वेज जो भी है 15,000 या 15,000 के नीचे है उनका कंट्रीब्यूशन मैंडेटरी है. एम्प्लॉय को कट करके ही पैसा मिलेगा. ठीक है. द थर्ड वन इज एम्प्लॉय कैन पे एट अ हायर रेट दैट इज एक्सीडिंग 10 और 12%, बट द एम्प्लॉय इज नॉट. मतलब अगर एम्प्लॉय चाहे तो उसका 10% 12% जो डिस्कस है उससे भी ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकता है. अगर आपका 10,000 सैलरी है वो एम्प्लॉय को बोल सकता है कि मेरा 15% काट के हमको तो 15% आप मेरा गुल्लक पीएफ में डाल दो. बट इन दिस केस एम्प्लॉय के पास ऑप्शन है कि वो बस 12% मैक्सिमम तक ही अगर कंट्रीब्यूट करे तब भी उसका लॉस वो अवॉइड कर जाएगा. और वो चाहे दिलदार है तो 15% भी कर सकता है, वरना अगर वो 12% जो डिसाइडेड रेट जनरल रेट था अगर वो उतना करे तो भी ही विल बी गवर्न, मतलब ही विल अबाइड बाय द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट. ठीक है. द फोर्थ वन इज ईपीएफ का गुल्लक का पैसा हम लोग कब विड्रॉ कर सकते हैं. ये बहुत मैंडेटरी, ये बहुत जरूरी है. सॉरी नॉट मैंडेटरी, ये बहुत जरूरी है. एक बार देखना. At the time of retirement, retirement is the key word. On or after 58 years of age, that is the other word. मतलब retirement भी होना चाहिए plus आपका 58 years आपका age भी हो जाना चाहिए, then you can withdraw. And the other one, अगर आप retired है और आप 54 years में भी you can withdraw, but you'll be getting only the 90% of the balance. ठीक है. ये हो गया. Unemployed for 2 months or more. अगर आप अनएम्प्लॉयड हो फॉर 2 months or more then also you can withdraw the entire balance. ठीक है. At the time of death you can withdraw the others and in others, for example medical emergency, house construction, marriage आपका या फिर आपका family members का. So in that case also you can withdraw. यहाँ पे कुछ conditions है that you will have to see and then only you can withdraw. And in COVID time also you can withdraw subject to certain conditions. Let's look at the definition of basic wage also. कि आपका बेसिक वेज का मतलब क्या है अंडर दिस एक्ट. मींस ऑल एम्लुमेंट्स व्हिच आर अर्न्ड बाय एन एम्प्लॉय व्हाइल ऑन ड्यूटी. ठीक है. और ऑन लीव और ऑन हॉलीडेज विद वेजेस इन आइदर केस इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉय. मतलब कुछ भी आप अर्न करो, सॉरी व्हाइल ऑन हॉलीडे या फिर व्हाइल ऑन लीव आप पैसा अर्न कर रहे हो वो बेसिक वेज है. एंड पेड और पेएबल इन कैश. मतलब बेसिक वेज अंडर दिस एक्ट आपका परक्विजिट्स इंक्लूड नहीं होगा. आपको जो कैश में मिल रहा है व्हाइल ऑन ड्यूटी या फिर व्हाइल ऑन हॉलीडे वो आपका बेसिक वेज है. बट डज नॉट इंक्लूड कैश वैल्यू ऑफ फूड कंसेशन. हमको क्या लेना देना है. ऑलरेडी आप मेरे से बेसिक वेज, कैश वैल्यू ऑफ फूड कंसेशन, डीए प्लस रिटेनिंग अलाउंसेस पे मेरा कंट्रीब्यूशन तो ले ही रहे हो. ठीक है. यहाँ पे इंक्लूड मत करो. ओके. द अदर वन कैश वैल्यू नहीं होगा. सेकेंड पॉइंट डियरनेस अलाउंसेस. ठीक है. इंक्लूड मत करो. हाउस रेंट अलाउंस, ओवर टाइम अलाउंस, बोनस,
commission or any other similar allowance. हाउस रेंट अलाउंस, ओवर टाइम अलाउंस, बोनस, कमीशन और एनी अदर सिमिलर अलाउंस. और ये जो एनी अदर सिमिलर अलाउंसेस है, इसके कारण बहुत लिटिगेशंस आए हैं और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट या फिर हम लोग प्रिंसिपल्स डिस्कस करेंगे कि क्या 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 चीज एक्सक्लूड हो जाएगा इससे. द थर्ड पॉइंट, एनी प्रेजेंस मेड बाय द एम्प्लॉयर. These three will not be included. Now let's quickly look at the principles laid down for allowances to be excluded. ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन के थ्रू एक प्रिंसिपल जो है, allowances which are variable in nature, मतलब ऐसी allowances that are variable in nature, not fixed. For example, if we satisfy certain conditions या फिर कुछ ऐसी हो, then these allowances will not be included. Of course, in this case ऐसा मतलब वेरिएबल हो, बट इन सब्सटेंस अगर ये फिक्स है तब तो इंक्लूड हो जाएगा. इट शुड बी वेरिएबल, मतलब देखने में भी वेरिएबल प्लस होना भी चाहिए वेरिएबल. Allowances which are linked to any incentive for production resulting in greater output by an employee, मतलब आपका जो प्रोडक्शन बोनस टाइप हो, दैट आल्सो विल नॉट बी इंक्लूडेड. द थर्ड वन, अलाउंसेस व्हिच आर नॉट पेड अक्रॉस द बोर्ड टू ऑल एम्प्लॉइज. अगर आपका ऐसा अलाउंसेस है जो आप बस स्पेसिफिक एम्प्लॉइज को दे रहे हो, सो दोज अलाउंसेस विल आल्सो बी नॉट बी इंक्लूडेड. द फोर्थ वन इज अलाउंसेस व्हिच आर पेड स्पेशली टू दोज हु अवेल द अपॉर्चुनिटी, मतलब ऐसी अलाउंसेस जो अपॉर्चुनिटी को कर लेता है, तो वैसे अलाउंसेस आल्सो विल नॉट बी इंक्लूडेड. फॉर एग्जांपल आपका वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, अब ये वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम का जो मनी है उसको ही मिलेगा जो दोज हु विल अवेल वॉलंटरी रिटायरमेंट, सो दीस अलाउंसेस विल आल्सो नॉट बी इंक्लूडेड. नाउ विल क्विकली डिस्कस एट सिनेरियोज आल्सो. ठीक है, सैलरी लेस देन और इक्वल टू ₹15,000 जिसमें मैंडेटरी है, जो हम लोग ने अभी देखा था. अब इसमें कैसे 12% हम लोग एक्चुअली देख चुके हैं, बट जस्ट अ क्विक एग्जांपल. एम्प्लॉय का 12%, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि 10,000 सैलरी है इन द फर्स्ट केस. एम्प्लॉय ईपीएफ, सो एम्प्लॉय का पूरा 10,000 का 12% आपका चला जाएगा ईपीएफ फंड में. वेरी गुड. अब एम्प्लॉयर का 10,000 का 8.33% जाएगा एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन इन ईपीएस, सो एंड 3.67% ऑफ 10,000 ईपीएफ में, जो ऑलरेडी डिस्कस है. ईडीएलआई 0.5% ऑफ 10,000. ठीक है. Now situation when salary is more than ₹15,000. इसमें दो केस है. फर्स्ट केस व्हाट वी विल डिस्कस इज, एम्प्लॉयर बोलता है मैं तो मैक्सिमम 15,000 में कंट्रीब्यूट करूंगा, तुम चाहे तुम्हारा सैलरी 20,000 है, तुम 20,000 पे अपना ईपीएफ में डालो, लेकिन मैं 15,000 पे मेरा लिमिट मैं मेंटेन करूंगा. ठीक है. अब एम्प्लॉय, लेट्स एज्यूम 20,000 सैलरी है. एम्प्लॉय का 12% ऑफ 20,000 विल गो अंडर ईपीएफ. ठीक है. इसमें एम्प्लॉयज गिविंग ओनली अप टू 15,000, so 8.33% of 15,000 under EPS, 3.67% of 15,000 under EPF, 0.5% of 15,000 under EDLI. Now we are moving to another situation when employer is दिलदार, बोलता तुम 20,000 पे कंट्रीब्यूट करो, मैं भी 20,000 पे कर दूंगा, मैं 15,000 का लिमिट नहीं रखूंगा, मैं भी 20,000 में करूंगा. ठीक है. इन दिस केस 12% of 20,000 एम्प्लॉय का विल गो टू EPF. ठीक है. अब ईपीएस में जो है मैक्सिमम जो कंट्रीब्यूट होगा 8.33% ऑफ 20,000 नहीं होगा, ईपीएस में 15,000 का ही लिमिट है. सो ईपीएस में जो जाएगा दैट इज 8.33% ऑफ 15,000. ठीक है. ईडीएलआई में भी 15,000 ही मैक्सिमम है, 0.5% ऑफ 20,000 नहीं होगा, 0.5% ऑफ 15,000. अब जब एम्प्लॉय ने बोला है मैं दिलदार हूं, आप 20,000 का 12% 2,400 होता है. अब जो 2,400 है और 15,000 का 8.33% 1,250 होता है, तो एम्प्लॉय ने जो बोला मैं दिलदार हूं, अब वो 2,400 कंट्रीब्यूट करेगा, लेकिन जो भी रिमेनिंग बैलेंस होगा वो पूरा का पूरा ईपीएफ में चला जाएगा. मतलब आपका 12% ऑफ 20,000 दैट इज 2,400 माइनस 8.33% ऑफ 15,000 विल गो अंडर या ईपीएफ. सो हम लोग ये एग्जांपल के थ्रू क्या देखा है, ईपीएस में मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन हो पाएगा दैट इज 1,250 कैसे आया, 15,000 का 8.33%. ठीक है. So with this, I think this is also clear more or less. Now we'll move under EPS scheme. Eligibility conditions. Condition number 1, completed at least 10 years of service. ठीक है. Attain the age of 58 years. दो conditions है, आपका 58 years हो जाना चाहिए and you should have completed 10 years of service. अगर आपका दो conditions fulfill हो गया, then you start getting the pension scheme, pension fund. The third point is can defer the pension by 2 years, that is up to 60 years, and in that case pension would increase by a certain amount. ठीक है. अब ये नोट में क्या डिस्कशन है कि अगर आपका 58 years कंप्लीट हो गया हो
एंड इफ यू आर इन सर्विस देन ऑल्सो यू विल स्टार्ट रिसीविंग द पेंशन. ठीक है, आपका 58 ईयर्स है हो गया प्लस 10 ईयर्स कंप्लीट हो गया, तो आप सर्विस में हो नहीं हो हम लोग को दिक्कत नहीं है, यू विल स्टार्ट गेटिंग द पेंशन. बट इसमें बस एक ही चेंज है कि एम्प्लॉय का जो हम लोग कंट्रीब्यूशन बोलते थे 8.33% आपका ईपीएस में जाएगा, 3.67 ईपीएफ में जाएगा. बट वंस द एम्प्लॉय रीचेस 58 ईयर्स, अब एम्प्लॉय का 12% जाएगा प्रोविडेंट फंड में. पेंशन स्कीम में एम्प्लॉय का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं जाएगा वंस 58 ईयर्स एम्प्लॉय का हो गया हो. ठीक है, फॉर्मूला के हिसाब से एम्प्लॉय विल स्टार्ट रिसीविंग द पेंशन. अब इस थर्ड पॉइंट, अदर पॉइंट में हम लोग ने ये डिस्कस किया है, अगर एम्प्लॉय का 10 ईयर्स कंप्लीट हो गया हो एंड अगर वो 58 ईयर्स नहीं पहुंचा अभी तक, तो इन दैट केस आपको एक स्कीम सर्टिफिकेट मिल जाएगी. एंड वंस यू रीच 58 ईयर्स ऑफ एज देन यू विल स्टार्ट रिसीविंग द पेंशन. अब द अदर वन इज, अगर आपका 10 ईयर्स भी कंप्लीट नहीं हुआ हो एंड इफ यू आर नॉट 58 ईयर्स भी अगर आपका नहीं हुआ है अभी तक, तो आप क्या कर सकते हैं, आइदर यू कैन विथड्रॉ द एंटायर बैलेंसेस, or what you can also say is what you can also go for and ask is for the scheme certificate. Scheme certificate में आपका number of period of service mention होगा. So different scheme certificates combined together when it will make 10, and once you reach 58 years of age you will start receiving the pension. ठीक है, ये हो गया EPS. अब EDLI में 0.5% जो डिस्कस किया था, contribution to be paid on maximum 15,000, ये ऑलरेडी डिस्कस था, सिनेरियो में हम लोग ने डिस्कस किया. The other point is EDLI contribution to be paid even if member has crossed 58 years of age. अगर आप 58 years of age हो गया हो and if you are in the employment, then normally 0.5% जो लगेगा वो लगेगा, आपका EDLI खत्म नहीं होगा, बस EPS खत्म होता है. ठीक है, और EPS खत्म हुआ तो क्या हुआ, आपका EPS का जो कंट्रीब्यूशन था वो तो EPF में जा ही रहा है. ठीक है, payment of assurance benefit under EDLI scheme is only available on the member's death while in service to his nominees. आपका जो इसका बेनिफिट अगर आपको तभी मिलेगा, नॉट बेनिफिट एक्चुअली, आई डोंट वांट टू कॉल इट बेनिफिट आल्सो, वंस इन सर्विस अगर आपका हो गया देन यू गेट द assurance of maximum of ₹6 lakhs. फॉर्मूला है फॉर EDLI 30 times the average salary, जो आपका लास्ट 12 months का एवरेज सैलरी इंटू 30 प्लस 1.5 लाख का बोनस. ये आपका EDLI था. विद दिस आई थिंक we have completed broadly the provisions of the PF Act. And friends, if you have any doubt, you can at any time mail me at agarwalsandeep696@gmail.com and subscribe our channel for more informative and professional videos. Thank you.